Hello everyone, welcome to Dr. Dushyant's physics classes. Myself Dr. Dushyant Pradeep, and today we are going to discuss the direct method for derivation and explain the direct method with the help of numerical problems on derivation. Previous lectures we have discussed various functions and the differential coefficient for those, and today we will apply all those differential coefficient derivations to find the direct values of certain another functions in the journal form, generalization. So we are going to do the generalization. So first of all, let's check on what we have done earlier. First one, what we have got the differential coefficient of x raised to power n, that is equal to n x n minus 1. Then we have got the differential coefficient of sine x, and that was cos x. Then the differential coefficient of cos x, and that value was what? That was minus sine x. We have also got certain other values, but today we are going to have the numerical problem based on only these. So we are not going to have the discussion on those. So it will remain e raised to power x. So this is what we have discussed. These are the few of the functions. So today we will generalize them. So we'll get the journal values. So first thing first, let's have an example on the base of d over dx differentiation of x raised to power n, that is equal to n x n minus 1. Done. That is now your journal derivation. So this is on the basis of the first principle method that you have already known as ab initio or the delta method. So first thing, if you have to get the value of a constant, means you have to get the differential coefficient of for the constant. Let the constant be a number. I ask you, differentiate this one with respect to dx, then what will be the value? So if it is d by dx, can it be written as d by dx of 3? क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 into x raised to power 0? कोई फर्क पड़ा? क्योंकि 3 को हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है 1 को, 3 से मल्टीप्लाई किया है 1 को, और 1 को हम लिख सकते हैं एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1. तो हम एनीथिंग की जगह यहां वेरिएबल ले रहे हैं. वेरिएबल कौन है? x. तो यहां पे 3 आ जाएगा बाहर, क्योंकि ये इसको हम नहीं ले सकते, ये कोफिशिएंट है वेरिएबल का, तो वी विल मूव इट आउट. सो हमारे पास क्या बच गया? डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 0. नाउ अप्लाई दिस जर्नलाइज फॉर्मूला हियर. n की रिप्लेस किसने किया है? 0 से. सो 3 तो अपनी जगह आ गया, अंदर क्या बच गया? 0. पावर किसको रिप्लेस कर रही है? n को. तो n कहां चली जाएगी? मल्टीप्लीकेशन में. सो 0 यहां आ गया, पावर x अपनी जगह रह गया, पावर जो पावर थी -1, पावर क्या है यहां पे? 0. सो 0 minus 1. So this is your differential coefficient. अब anything multiplied by 0 will become 0. Anything multiplied by 0 will become 0. तो आपके पास क्या आ गया? एक चीज क्या आ गई कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर आप किसी का भी निकालते हो, d by dx of any constant that is equal to 0. That is equal to 0. So without any other discussion, you can substitute the differential coefficient for merely for what? Merely for a constant, but constant without any coefficient, without any variable as its coefficient, without any multiplier. जब उसके साथ कोई भी दूसरी टर्म वेरिएबल की फॉर्म में ना हो, ओनली देन you can substitute its differential as 0. Done. This was the first term. Now if your differential is in the form of an equation, let's do that. चलिए पहले एक करते हैं. We have got this expression, x raised to power 3 plus x की power 2. Done. You have to got this. So first thing first, this can be written in the braces. So d by dx of x raised to power 3,
and also the d by dx of x raised to power 2. सो ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, अगर प्लस में आ रहा है हमारे पास कोई एक्सप्रेशन, तो वो दोनों का इंडिविजुअल टर्म्स का लेना है हमने. सो इंडिविजुअली चला गया एक्स क्यूब का भी और एक्स स्क्वायर का भी. अब इन दोनों को अलग अलग फॉर्मूलाज कौन से लगेंगे? वही जर्नल फॉर्मूलाज. तो जर्नल फॉर्मूला में n 3 एक्स क्यूब है तो 3 उसकी पावर है, 3 कोफिशिएंट में आ जाएगा, x अपनी जगह और 3 की -1 हो जाएगा. ये आ गया फर्स्ट. अब सेकेंड, x की पावर 2 है, मीन्स 2n की जगह है x 2 -1. नथिंग टू वरी, दैट्स ऑल. 3 x की पावर 3 -1 2 प्लस 2 की पावर into x. So you got what? 3 differential coefficient of d by dx of x cube plus x का square. You have got this term for this differential. So ये समझ आया आपको? चलिए मैं इसे थोड़ा सा और टफ करता हूं बाय एडिंग द कोफिशिएंट्स टू दीज नंबर्स. लेट्स डू दैट. अब इन एक्सप्रेशंस में सिर्फ आपके पास d over dx 3x4 plus 4x plus 5. I have introduced a constant as well as a variable coefficient also. So first thing, we will individually get the differentials. Plus d by dx of 4x plus d by dx of 5. तो सबसे पहला काम भाई, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है किसका? 5 का. 5 क्या है? कांस्टेंट. और दूसरी चीज, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है. तो व्हाट आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ कि अगर ऐसा केस हो जिसके मल्टीप्लाई में एक्स वाई कुछ भी ना हो, सिर्फ अकेला कांस्टेंट हो, तो उसके डिफरेंशियल उसी समय क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 0. तो थर्ड टर्म हो गई 0. अब फर्स्ट टर्म देखिए, इसमें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है. जो मल्टीप्लायर है वेरिएबल का उसे डिफरेंशियल से बाहर ले आइए. 3 बाहर आ गया. इनसाइड वी हैव गॉट d by dx of x raised to power 4 प्लस सिमिलरली यहां भी x का कोफिशिएंट कौन है? 4. So we got dx by dx. Got this thing? So अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गई है. चलिए देखते हैं. So 3 फॉर्मूला लगाइए इसको. ये बन गया n, तो n आ जाएगा मल्टीप्लाई में x n -1. n कौन है? n -1. ये आ गया आपके पास. तो आपको यही चाहिए था. n की जगह है 4, x की पावर 4 -1. ये फर्स्ट टर्म आ गई. प्लस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है dx by dx. x की पावर 1 है, 1 इंटू x की पावर 1 -1 प्लस थर्ड टर्म क्या थी? 0. So already gone. So we got 3 into 4 into x की पावर 4 -1 3 plus 4 into 1 into x की पावर 1 -1 0. Anything raised to power 0 is 1. So ये किसके बराबर हो गया? ये आपकी वैल्यू हो गई 1 के बराबर. So you got what? 3 into 4 12 x की पावर 3 plus 4. So this is the differential coefficient of what you have started with. What? That was your 3x power 4 plus 4x plus 5. इसका आंसर क्या आ गया आपके पास? 12x क्यूब प्लस 4. डन. ये समझ आ गया आपको. सो अब आपको x रेज टू पावर n की फॉर्मेशंस में समझ आ गया कि x रेज टू पावर n के अगर आपके पास एग्जांपल आए, सो यू कैन गेट दिस. डन. चलिए अब हम करते हैं कि अगर हमारे पास दूसरा वेरिएबल आए, कौन सा वेरिएबल फंक्शन आए? सेकेंड वन, मींस साइन या कॉस की टर्म में. ठीक है, साइन या कॉस की टर्म में अगर आपके पास आता है. चलिए तो दूसरा आपके पास फंक्शन की क्या वैल्यूज थी? d over dx ऑफ साइन x. मैं दोनों को कंबाइन करूंगा. साइन x कॉस x हो जाएगा. अगर d by dx हो cos x का, तो दैट इज गोइंग टू बी माइनस साइन x. डन. चलिए अप्लाई करते हैं. तो सबसे पहला मैं इनके साथ ऐड कर देता हूं क्या?
चलिए साइन एक्स, अब साइन एक्स है तो इसे एक्सप्रेशन में दोनों डाल देते हैं, 3 sin x plus 4 cos x. This is your expression and you have to get the differential coefficient. इसका differential coefficient निकालना है तो अगेन चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो बट प्रोसेस मेथड वही है, इंडिविजुअल डी बाय डी एक्स किसका 3 sin x का प्लस इंडिविजुअल डी बाय डी एक्स किसका 4 cos x का, फिर से मेथड वही है, 3 विल बी आउट डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 4 विल बी आउट डी बाय डी एक्स ऑफ cos x. यू गॉट दिस थिंग. चलिए अब आपके पास ये टर्म्स आ गई हैं, अब आप इनको कीजिए डिफरेंशिएट, आपके पास आ जाएगा 3 साइन का क्या बन जाता है cos x प्लस 4 cos का क्या बन जाता है माइनस साइन x. So your final expression is 3 cos x minus 4 sin x. This is about your differential coefficient if you are going to have one trigonometric function sin cos. ठीक है भाई, ये समझ आ गया. चलिए अब अगर sin cos में पावर्स भी हो, क्या हो पावर्स भी हो, चलिए तब मैं आपको बताता हूं कि अगर sin cos में क्या क्या हमारे पास आ जाए, पावर्स भी हो भाई, पावर्स हो मींस आपको डिफरेंशियल निकालना है डी बाय डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स. डन. तो पहला काम याद रखना है, इसे पहले x की पावर 2 कंसीडर करना है, x मतलब साइन की जगह x, तब ऐसा करेंगे तो x की पावर 2 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 2 इंटू x की जगह साइन x है पावर 2 माइनस 1 इंटू, अब साइन x को डिफरेंशिएट करना है, किसको डिफरेंशिएट करना है साइन x को, सो डी बाय डी एक्स ऑफ साइन x. ध्यान, पहले क्या किया, इसको माना x की पावर 2 इंटू सिर्फ विदाउट सिर्फ साइन x को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, सो 2 साइन x इंटू साइन का बन गया cos x. सो ये आपकी फॉर्मेशन आ गई. तो इसी तरह सभी में करना है, चाहे cos हो तो पहले पावर को करना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, कि उसे x रेज टू पावर n की फॉर्मेशन में ले जाना है और उसके बाद उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले कोफिशिएंट्स को अप्लाई करना है. ये समझ आ गया आपके पास. अब अगर आपके पास एक, मैं आपको समझा देता हूं कि एक सिंगल आपको बता देता हूं, अगर दो वेरिएबल्स हो और उनमें प्रोडक्ट रूल लग रहा हो, क्या रूल लग रहा हो, प्रोडक्ट रूल. एक एग्जांपल मैं आपको प्रोडक्ट रूल की देता हूं कि डिफरेंशिएट डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स. डन. बहुत ही आसान है, मैंने आपको प्रोडक्ट रूल पढ़ाया था. प्रोडक्ट रूल क्या था भाई, प्रोडक्ट रूल था पहले एक को, अगर u और v का डिफरेंशियल हो रहा है, u और v का है, u एक वेरिएबल है, यहां ux है, v कौन है दूसरा, सो पहले u को बाहर रहने दीजिए, डिफरेंशियल लीजिए दूसरे का, प्लस अब v को बाहर रहने दीजिए, डिफरेंशियल लीजिए दूसरे का. समझ आ गया, पहले u को बाहर रहने दो, जरूरी नहीं है पहले v को बाहर रहने दो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो. डन. लेट्स डू दिस विद दिस वन, दिस फंक्शन. चलिए x u है, u बाहर रहने दीजिए, डिफरेंशियल लीजिए v का, v कौन है साइन x, प्लस अब साइन x बाहर रहने दीजिए, डिफरेंशियल किसका लेना है x का. सो हो गया काम आपका, x डिफरेंशियल ऑफ साइन x क्या है cos x प्लस साइन x, डिफरेंशियल ऑफ x क्या होता है dx by dx 1. So your differential coefficient for d by dx of x sin x, that is equal to sin x plus x cos x. So इसी तरह आपके पास ये फॉर्मूला आ गए. तो समझ आ गया आपको, यही थे आपके कुछ एग्जांपल्स. नेक्स्ट लेक्चर में इसे एक्सटेंड करेंगे टूवर्ड्स द इंटीग्रल coefficients or integral calculus. So that's all for today. Thank you very much. Enjoy the physics. Having any doubt, let me know about them. Thank you. Goodbye. Thank you for watching my channel. Please subscribe and share, and also press the like button that is down here.